Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to everyone. On behalf of the Women Development Department, University of WA and the Female Ambassador Program Punjab, initiated under the vision of the Chief Minister Punjab, I warmly welcome all our respected guests, participants, and organizers to today's webinar. I would like to extend a very warm welcome and respectful welcome to our worthy Vice Chancellor, University of WA, Director Auric, respected deans and faculty members, our esteemed guest speaker, Madam Noreen Ghaffar, and all distinguished participants. We are truly too honored to have you with all us today. I am Myra Kashaf Raja, serving as a female ambassador from the Women Development Department at University of WA, and it is my privilege to host this session today. This program is a significant initiative aimed at empowering women, promoting leadership skills, and encouraging their active participation in education, innovation, and entrepreneurship, which are essential for sustainable development. Today's webinar is titled Empowering Women in Leadership and Entrepreneurship, the Role of the Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry. The objective of this session is to promote women's participation in innovation, scientific entrepreneurship, and the broader economic ecosystem, and to highlight the role of institutions in supporting women's growth. We are proud to organize this session in collaboration with the Women Development Department Punjab, working together to create opportunities and platforms for women to grow, lead, and succeed. Now, I would like to introduce our esteemed guest speaker. We are honored to have with us Madam Noreen Ghaffar, Executive Committee Member at the Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry. She is a dynamic professional and a strong advocate for women's empowerment, actively contributing to promoting entrepreneurship and leadership among women. Through her work, she has been creating opportunities, supporting business initiatives, and encouraging greater participation of women in the economic sector. Her experience, dedication, and commitment make her an inspiring role model for all of us. We warmly welcome you, ma'am. It is truly an honor to have you with us. Now, I would like to hand over this session to our respected focal person, Dr. Asma Arif, for her valuable remarks and to formally begin today's webinar. Thank you so much, Myra. Assalamu alaikum, and a very good morning to everyone. On behalf of the Women Development Department, University of WA, I extend warm welcome to my esteemed guest speaker, Ms. Noreen Ghaffar, all distinguished participants, and our valued guest as well. We are truly honored to have you all here with us for today's workshop. This workshop aims to highlight the importance of women participation in leadership and entrepreneurial roles, and to explore how institutions like Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry are playing a vital role in creating opportunities and supporting women in their professional journeys. It is also important to highlight that this workshop is being conducted under the initiative of the Chief Minister of the Punjab Female Ambassador Program, Women Development Department, to promote gender inclusive participation in the academia and economic development. Before proceeding formally, I would also like to express my sincere gratitude to the Chief Minister of the Punjab and the Government of Punjab for making this session possible and for providing us the platform to for a meaningful and solution-based discussion. Today, this session is very important because we have chosen a very engaging topic for uplifting female participation. Because according to the World Bank report, female participation has not only increased women economic engagements, but it has also increased businesses both at the small and large scale by 20 to 30%. As far as Pakistan is concerned, we are also witnessing increasing participations of women almost in all sectors. For example, we can see them in the trade sector, in the industry sector, and in the information and technology.
it would not be an exaggeration if I say that women are not only participating their businesses and their enterprises, but I think it is very relevant that they are also leading their own enterprises and mentoring other women as well. We can find them encouraging other women that they should start their own business and they should lead both at the small and the larger scale. Uh, I also would like to add that business, this is very important to know. Business is not only a source of the financial support, but I think it is a source of self empowerment. It is a source of self confidence. And I think a confident woman, educated woman can better take care of her family, can better take care of her kids. And I think she can play a positive role for shaping the society in a very better way. To talk on this issue, we have invited Madam Noreen Ghaffar, who is currently serving as an executive committee member of the Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry. Uh, we are truly honored to have her with us, and we are looking forward to gaining valuable insights from her expertise and the journey. I always, as far as the personality of the Madam Noreen Ghaffar is concerned, I always found her smiling, confident, actively taking part in organizing different activities, both at national and international level, and providing solutions to complex issues as they are nothing. So, if I say she's the ideal of all young women, that would not be an exaggeration. So, first of all, Madam Noreen Ghaffar, I'm sure you are here and I am audible to you as well. Yes, I'm here and you're very much audible. Thank you very much. We are so much excited, Madam Noreen Ghaffar. You are here, University of Law. First of all, we welcome you in University of Law. Even I'm very, very excited and I really loved आपने इतना खूबसूरत introduction दिया है. तो इसके लिए really, really thankful to you. Actually, ma'am, when I was back in the Coffee Morning Show in the Rawalpindi Chamber of Commerce back in 2025, I was really inspired. Always, you are smiling and a very light personality, and anyone, I think, can easily be inspired by you. Oh, So, thank you. so today I want our young generation and our young female and even our male students are also here. They should listen you and they should learn from your expertise. So, ma'am, I think we should formally start our session now. So, ma'am, keeping in mind your professional background, I think we all must know that what inspired you to pursue a leadership role in the business community and who supported you? And what challenges did you face as a woman in the leadership and how did you overcome them? Of course, कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम जरूर होंगे जब आपने क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से स्टार्ट लिया था when of course at that time you will be very young at that time. तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से आपने स्टार्ट लिया और किसने आपको सपोर्ट किया? ओके, प्रॉब्लम्स तो खैर अभी भी हैं, चैलेंजेस तो अभी भी हैं. क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं प्रॉब्लम्स की नेचर बदल जाती है, चैलेंज की नेचर बदल जाती है और उसको उसके हिसाब से एमिकेबली सॉल्व करना होता है. सो व्हेन आई स्टार्टेड लीडरशिप रोल पे आने की मेरी कोई खास इंटेंशन नहीं थी, लेकिन ऑटोमेटिकली एकदम से आप जब काम कर रहे होते हैं तो सम पीपल आर वॉचिंग यू, ऑब्जर्विंग यू, और कोई ना कोई आपको पिक कर लेता है कि इनको ग्रूम करें एंड लेट्स सी हाउ इट हैपेंस. सो सबसे अहम चीज मेरी जिंदगी में जो रही है कि सिंस डे वन आई हैड अ डायरेक्शन, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप जरूर मेरे पास मैंने अपने लिए बनाया हुआ था एज फार एज माई बिजनेस, माई करियर इज कंसर्न. तो मेरा स्ट्रेटेजिक प्लान हमेशा एक स्ट्रेटेजिक गोल है, था और रहेगा जब तक मैं आई एम लिविंग. सो उसके लिए सबसे अहम चीज जो मैंने की थी दैट इज स्वॉट एनालिसिस, विच इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट. जब व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू डू इट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, अपना स्वॉट एनालिसिस, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ माई स्वॉट एनालिसिस मुझे पता चलता था कि मेरी खूबी, खामी
और जो मुझे अपॉर्चुनिटी का जखीरा मार्केट में कैप्चर करने में आसानी हो रही है, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, क्योंकि हमारा जो दीन, हमारे रिलीजन का भी पहला लफ्ज जो था वो रीड, इकरा, इकरा एंड इकरा। तो रीडिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो मेरे करियर आज तक जो नर्चर हो सका है, जिस भी स्टेज पे आप लोग मुझे समझें, उस पे मेरी रीडिंग स्किल्स ने बहुत ज्यादा अहम रोल किया है। और उसको सपोर्ट करते हुए, क्योंकि जब मेरी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को मैंने एनालाइज किया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो कैसे कॉम्बैट करना है, मैंने अपनी वीकनेस को कैसे कन्वर्ट करना है टू माय स्ट्रेंथ, तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ा है, और उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो स्वॉट इज अ की फैक्टर इन माय ग्रोथ टिल नाउ। दूसरा, बहुत आपने कौन सपोर्ट, क्योंकि आई एम अ फर्म बिलीवर एंड प्रैक्टिशनर ऑफ इंक्लूजन। हम जेंडर स्पेसिफिक नहीं रही हूं, लेकिन चूंकि मैंने बहुत सारी खवातीन के बहुत सारे इश्यूज देखे, आई एम फॉर्चुनेट वन के मेरे डैडी, मेरे मामू, मेरे साथ मेरा भाई, मेरा अब मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, ये सब मुझे सपोर्ट करते हैं एज फार एज फैमिली इज कंसर्न। क्योंकि घर का सपोर्ट होता है तो हम बेहतर तरीके से आगे चल सकते हैं। दूसरा अहम चीज, जब आप वैल्यूएबल अपने आप को दिखाते हैं, क्योंकि स्वॉट जब आप करते हैं तो आप अपनी वैल्यू प्रपोजिशन जो होती है, जो हम बिजनेस में पढ़ते हैं, कि जो आपकी वैल्यू प्रपोजिशन है वो पता चल जाता है। एंड पीपल, जेन मार्केट में जितने भी बिजनेस कम्युनिटी में लोग काम कर रहे हैं, वो हमेशा उन लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं कम्युनिटी सर्विस में, स्पेसिफिकली जो वैल्यूएबल हों और सोल्यूशन प्रोवाइडर हों। तो उसमें मेरे मेल मेंबर्स, नॉट ओनली इन रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स, नोबडी नोज मी, न्यू मी बिफोर आई केम टू रावलपिंडी। मेरे चेंबर में मुझे सिर्फ मेरे काम की वजह से जाना जाता है, सराहा जाता है। ऑल द वे कराची से जब मूव करें, तो आपको पता है कि बहुत मुश्किल लात का सामना करना पड़ता है। तो ये तो मैंने कहा सपोर्टिंग में इंक्लूजन, चूंकि मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो मेरे मेल कॉलीग्स, माय मेल सपोर्टर्स फ्रॉम माय हाउस, दे हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। अब आ गया चैलेंज। उसकी तो फेरिस्त जो है ना, वो बहुत 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 बड़ी है। चूंकि मैं ज्यादा चैलेंजेस के ऊपर इसलिए नहीं बात करना पसंद करती कि वो डिस्करेजमेंट भी होती है ना जरा गर्ल्स को। लेकिन मोटी मोटी चैलेंजेस मैं आपको बता देती हूँ, जो कि एक सोल्यूशन की तरफ भी आपका रुझान करता है। आप जब खातून होते हैं तो लोग आपको सीरियस नहीं लेते कि ये तो हम इसके ऊपर अपना टाइम लगाएंगे, इसको ट्रेन करेंगे, और उसके बाद उसने शादी करनी है, घर पे रहना है, और उसने वो चीजों को मटेरियलाइज नहीं करना। तो एक ये बहुत अहम चीज है कि हम ये अपने आप को मनवा सकें कि हम पे जो इन्वेस्टमेंट हो रही है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के तहत या कोई ग्रांट्स के तहत, तो उसमें हमें एक डायरेक्शन हमारे पास है, और हमारा उनका वक्त, उनका पैसा जाया नहीं होगा। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हम पेश आता है। अब इसमें हमें ज्यादा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। लोग थोड़ी सी आवाज भी तेज करते हैं, जो ऊंचा बोलते हैं आदमी औरतों से। तो वो थोड़ा सा, हम चूंकि हमारे अंदर एक इनबिल्ट अल्लाह की तरफ से जो कुछ सलाहियतें हैं, हमें ऊंची आवाज में अगर कोई बात करता है तो हम जरूर सहम जाते हैं। मैं भी सहम जाती थी जब मैं बच्ची थी। बहुत मुश्किल, रोना भी आता था, बहुत सारी चीजें मुश्किल में थी। लेकिन जब स्वॉट, चूंकि मेरा हमेशा मैं करती थी कि इस चीज को कैसे मैंने एड्रेस करना है, कि मुझ पे कोई चिल्लाता है तो मेरी तबीयत क्यों खराब हो जाती है, मैं क्यों परेशान हो जाती हूँ। तो क्योंकि आपको सप्रेस करना एक, चले मेल डोमिनेटिंग, क्योंकि यही मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में मुझे सपोर्ट भी मिला है। तो आपने ये बिल्कुल नहीं समझा, क्योंकि प्रॉब्लम की आपने बात की है तो मुझे बताना जरूरी है। तो मैंने इस चीज पे, मेरे एक बहुत अच्छे कम्युनिटी के फ्रेंड हैं, ही वॉज माई फर्स्ट क्लाइंट व्हेन आई केम टू इस्लामाबाद 2010 में ना। चूंकि वो काम करते करते एक, आपको पता है, एक एक्वेंटेंस हो जाती है। सो ही इज अ वेरी वेरी ब्रिलियंट
उसने मुझे कहा कि मैं परेशान थी। उसने कहा कि तुम्हें जो परेशानी हो रही है वो इसलिए हो रही है कि यू आपको गुस्सा इसलिए आ रहा है, या आप परेशान इसलिए हो रही हैं, या आप रो इसलिए रही हैं कि आपने टोन ऑफ वॉइस पे ज्यादा आपका फोकस है। आप टोन को बिल्कुल न्यूट्रल कर दें और सिर्फ फोकस ऑन द वर्ड्स। आप ये काम नहीं कर सकती, आप ये काम नहीं कर सकती। जब मैं टोन पे फोकस करती हूं तो मुझे दिल खफा होता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ अल्फाज पे फोकस करती हूँ तो मुझे दिल खफा नहीं होता। तो ये ट्रेनिंग भी मुझे मेरे मेल मेंबर्स ने ही दी है, हु इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू माय सिस्टम बट अ क्लाइंट हु बिकेम एक्वेंटेंस। उन्होंने मुझे 2010 में ये सीख दी थी। सो दीज आर कपल ऑफ चैलेंजेस जो कि बहुत ही एमिकेबली एड्रेसेबल हैं। थोड़ा सा रिजिलियंस का एलिमेंट होता है। तो जब आप स्वॉट करते हैं तो आप बहुत वैल्यूएबल हो जाते हैं। दिस इज व्हाट टू द बेस्ट ऑफ माई। और अगर आपको लगे कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स थोड़ी सी और इम्प्रूव हो रही हैं या वीकनेसेस, तो हर किसी को आइडेंटिफाई करनी चाहिए 5 स्ट्रेंथ्स मिनिमम और 5 वीकनेसेस, और उसको फिर इवॉल्व करते रहें। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। आपने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया मैडम नौरीन गफार। जब हम ये बात करते हैं कि चैलेंजेस की जब बात करते हैं तो वो थोड़ा सा मेल्स को लगता होगा शायद फीमेल्स जो हैं हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। इनफैक्ट इसी मेल कम्युनिटी में अगर कुछ आपके अगेंस्ट में होते हैं तो साथ में वही मेल्स हैं जो आपके साथ सपोर्ट में भी होते हैं। तो गर्ल्स शुड नॉट टेक इट, कह लें कि ऐसा नहीं है कि हम उनको डरा रहे हैं शायद कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो ये इश्यूज होंगे। दीज आर ऑल नेचुरल। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको मेल्स की तरफ से आते हैं, मैं ये इसमें ऐड करूंगी कि ये आपको फीमेल्स की तरफ से भी आ सकते हैं। और मैडम नौरीन गफार, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कन्वे करना चाहूंगी। हमें जो ट्रेनिंग्स हम रिसीव करते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, उसमें हमें स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपने अपनी मीटिंग्स में मेल्स को, स्टूडेंट्स को, कलीग्स को इनवाइट करना है। और बिल्कुल आपने ये तासुर नहीं देना कि शायद हम मेल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, कोई प्रोपेगेंडा करें। जस्ट वी आर फोकसिंग ऑन टू अपलिफ्ट द वुमेन पार्टिसिपेशन। सो इसके साथ में मैम आई वुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Madam Noreen Khar, you also belong to a Memon family from Karachi. And you know, it is commonly believed that Memon family, Memon community has a very strong roots in business. So I want to know, and we all know, want to know how this family background and generational heritage influenced and supported your journey in business and leadership. बहुत ज्यादा हेल्प किया है, बिकॉज बचपन से जब से आंख खुली थी तब से हम घर में जो बिजनेस के चैलेंजेस और बिजनेस के सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते हुए पूरा हमारा ना, चूंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे जब हम छोटे थे, तो उसमें मेरे 5 7 चाचा, 4 फूफी एंड माय दादा एंड दादी, हम सब एक दस्तरखान पे बैठ के ना, खाना लगने से पहले एक नशिस्त होती थी जिसपे सारे चाचे, डैडी, दादा सब एक दूसरे से आपस में बात कर रहे होते थे। तो हम चूंकि हम बच्चों को साथ बिठाते थे तो हम ऑब्जर्व करते थे। उस ऑब्जर्वेशन से हमें मालूम होता था कि कितनी ज्यादा परेशानी को हम कैसे एमिकेबली उसको सॉल्व करते हैं। बहुत एक अहम चीज जो बिजनेस का भी एक बहुत उसूल है और जो हमारी कम्युनिटी सर्विस का भी एक बहुत उसूल है, वो ये कि जब दस्तरखान बिछता है हमारे घर में, तो जब तक दादा आते नहीं थे, जितने भी लोग थे वो खाना नहीं शुरू करते थे। तो ये रिस्पेक्ट जो है ना वो घर से, बिजनेस कम्युनिटी में भी यही है कि जब तक हमारे बड़े नहीं आते, जब कम्युनिटी में हम हैं, हम अपनी एक्टिविटी नहीं शुरू करते। ये रिस्पेक्ट है, प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये बहुत अहम है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चूंकि बचपन से देखते आए हैं कि किस तरीके से एमिकेबली, और सबसे अहम चीज जो हमने सीखी फ्रॉम माय फैमिली, क्योंकि फिलोंथ्रोपिक एक्टिविटीज हम बचपन से देखते आए हैं। क्योंकि बिजनेस के अंदर सबसे अहम चीज जो हमें सिखाते हैं कि प्लीज बार्टर विथ द ऑलमाइटी। और बार्टर ऑलमाइटी से आप क्या कर सकते हैं, आप थ्रू सदका खैरात आप हमेशा करते हैं, लेकिन किसी के बिजनेस के अंदर कोई चैलेंज, कोई इशू हो और उसको सॉल्व करें, तो वो भी एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। ये घर से हमारी सीख है
किसी के लिए आसानियां पैदा करना ये हमारा दीन भी सिखाता है, और यही हमारे घर से भी हमारी तरबियत हुई हुई है कि आसानियां पैदा करें। सो जब आप अपने लिए जो चीज चाहते हैं वो आप दूसरे के लिए कर दें तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें आसान हो जाती है। तो ये एक बहुत पाइवटल है, और बिजनेस चूंकि हमारे ब्लड में है तो हम कहते हैं कि काम होना चाहिए, कुछ आ रहा है, दो पैसे आ रहे हैं, सो क्लोज करनी चाहिए डील और आगे चलिए, क्योंकि शराकत में बरकत है। दिस इज ऑल्सो वी हैव लर्न्ड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पार्टनरशिप्स कोलैबोरेशन में बहुत ज्यादा मसाइल आते हैं बिजनेस में, लेकिन पार्टनरशिप्स में जितने लोग आपके साथ जुड़ते हैं उतने रिस्क आपके साथ जुड़ते हैं। तो इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि बांटने से बढ़ता है। तो आज का जो करंट मुआशरा है, हम उसके अंदर कहते हैं कि जो चीज आप अपने लिए चाहते हैं उसको बांटना शुरू कर दें, तो उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट आपके पास आएगा। जब आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप खुशियां बांटेंगे तो आपको खुशियां मिलेंगी। तो बिजनेस की कम्युनिटी के लिए अगर आप नेटवर्क अपना बांटेंगे तो आपका नेटवर्क इनहांस होगा, घटेगा नहीं कभी भी। और दिल बहुत बड़ा रखना सीखा मैंने अपनी कम्युनिटी की वजह से, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आप अपने दोस्त तो जरूर बढ़ाते हैं, लेकिन आपके दुश्मनों में भी कमी नहीं होती, बिकॉज देर इज अ जेलसी एलिमेंट जो कि कंज्यूमर बिहेवियर की एक बहुत बड़ी अहम चीज है, कि जेलसी आप बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जेलसी या एग्जोजेनस फैक्टर्स पे जो बातें हो रही हैं उसको एक आप क्रॉस लगाएं, और स्टे फोकस ऑन योर गोल, क्योंकि बात तो हमेशा उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। तो बात होने दें, उससे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और हु हैव बीन माय सपोर्ट, सबसे पहले अ, मेरे मम्मी डैडी मेरे सबसे बड़े सपोर्ट। फिर सेकंड, घर से मेरे मामू वॉज अ डॉक्टर, वो मेरे बहुत बड़े सपोर्टर हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। और अब के दौर में मेरे हस्बैंड, अ वेरी 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 ग्रेट सपोर्ट। मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ, क्योंकि स्वॉट हमें ये भी सिखाता है कि हमें कौन से काम करने हैं, और हमने अपने घर के माहौल को मद्देनजर रखते हुए कौन सी बिजनेस की लाइन को सेलेक्ट करना है। तो ये जो स्वॉट है ना, ये जो लोग कहते हैं कि हम क्या करें क्या करें, तो जब पहले आपका बाउंड्री जब आपको पता होती है तो उसमें भी आज के दौर में काफी सारी चीजें। और यहाँ पे मेरी कम्युनिटी में से मुझे बहुत सारे लोग, मेरे गैलेक्सी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं जो ऑब्जर्व करते हैं मेरी कम्युनिटी, जितनी भी एसोसिएशंस हैं रावलपिंडी के अंदर, उनके सदूर, उनके मेंबर्स, वो सब ऑब्जर्व करते हैं, और फिर हर कोई अपना एक फीडबैक देता है कि आया कि ये खातून इस काबिल है कि इनको मौका दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो बहुत बड़ी ड्यू डिलिजेंस होती है बिफोर यू एक्चुअली कम टू अ पोजीशन। तो बस कुछ गायबाना है, कुछ का नाम ले नहीं सकती, लेकिन है सपोर्टर्स फ्रॉम द कम्युनिटी। Thank you so much, ma'am. Ma'am, with this, I also want to know that in Pakistan, we are witnessing a growing trend of female participation across all provinces, in Lahore, Karachi, Islamabad. But we feel it is still less as compared to its potential. So, however, it is still limited in this constant context. How is the Rawalpindi Chamber of Commerce is actively supporting and encouraging women entrepreneurs? Could you highlight some key initiative programs and opportunities that the chamber is providing to help women start, sustain, and grow their businesses? मैम, हमारी जो अपनी फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो भी हमें अक्सर कंप्लेन करती हैं। फॉर एग्जांपल, वो बहुत अपने जो रूरल एरियाज हैं वहाँ से वो लेट नाइट ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा पार्टिसिपेट करना चाहती हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में, लेकिन वो नहीं कर पाती। ऐसी सूरत हाल में रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो अपना क्या रोल प्ले कर रहा है? अच्छा, इसको मैं आंसर दो फेजेस में देती हूँ। एक तो ये कि रावलपिंडी चेंबर वुमेन के लिए बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स करता है, फ्रॉम कंपनी फॉर्म कैसे करनी है, टिल क्या कहते हैं एग्जीक्यूट कोलैब करना है, बिजनेस की के अंदर क्या की एलिमेंट्स हैं, तो उसके बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं इन कोलैबोरेशन विथ स्मेडा, विथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो उसके स्पीकर्स आते हैं और वो बात करते हैं।
एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग्स प्रोग्राम है, और ये हमारे मेंबर्स के लिए तो होती है, लेकिन इट इज ओपन फॉर ऑल ऑल्सो। जिस जिसको हम इनवाइट भेज सकते हैं थ्रू अवर सोशल मीडिया, उन सबको हम मोर देन वेलकम करते हैं। कोविड हैज बीन अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो हम हाइब्रिड भी करते हैं जब हमारे पास कोई ऐसा टॉपिक होता है कि फिजिकली और वर्चुअली दोनों अटेंडेंस को आफ्टर कोविड एक अहमियत दी गई है। लेकिन आई वुड से कि हम जब अनाउंस करते हैं, जब तक एक एक शख्स को हम कॉल नहीं करते फिजिकली, तो जो आते हैं वो आ जाते हैं, बिकॉज फिजिकल कोलैबोरेशन हैज अ डिफरेंट इम्पैक्ट, हैज अ डिफरेंट। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक वर्चुअल प्रेजेंस की भी अहमियत नहीं पता चली। तो वर्चुअली भी जब आप कनेक्ट होते हैं, आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपकी कनेक्शन बनता है। आपके साथ मेरा जो कनेक्शन है, आपने मुझे ओआईसी में सुना और उसके बाद आपने मुझे किया, तो वर्चुअली भी इट हैज एन इम्पैक्ट। द इम्पैक्ट इज स्लो, ये जानना जरूरी है। स्लो है लेकिन है जरूर। तो कोशिश कभी भी किसी प्लेटफॉर्म को छोड़ना नहीं चाहिए जो कि आपके बिजनेस के लिए या आपके अपने करियर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा अहम इंक्लूजन, चूंकि देखिए हमारे ग्रुप लीडर हैं सुहेल अल्ताफ साहब, एंड ही इज डूइंग अ ट्रिमेंडस जॉब। तो ये जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हम रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में देखते हैं, और वुमेन पार्टिसिपेशन आप जो हमारी देखती हैं, वो इसलिए है कि जो सरबराह है, जो ग्रुप लीडर है, उसके साथ एक गैलेक्सी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं जो कि मशावरत करके एंड देन दे डेवलप डिफरेंट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। तो ये सरबराह का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो वो हमारे पास अप टिल नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इट्स इन प्लेस एंड इंटैक्ट। फिर जो टेन्योर शुरू होता है, उसका जो सरबराह होता है वो होता है प्रेसिडेंट। तो हमारे करंट टेन्योर में जो प्रेसिडेंट हैं वो उस्मान शौकत साहब हैं, अ फर्म प्रैक्टिशनर एंड अ बिलीवर ऑफ प्रोवाइडिंग conducive environment, and he is a true example of empower, डेलीगेट एम्पावर एंड लीड। क्योंकि डेलीगेट एम्पावर एंड लीड का जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी है वो बहुत मुश्किल है। रीजन बीइंग कि जब आप किसी को कहते हैं नौरीन तुम ये काम करो, तो उसने उन्होंने मुझे डेलीगेट कर दिया कि ये काम आपने करना है। फिर उसके बाद वो मुझे हर तरह का रिसोर्स फराहम करते हैं उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए फॉर द कम्युनिटी, और फिर वो उसको लीड करते हैं और सपोर्ट में खड़े रहते हैं। तो जब आप करते हैं तो जाहिर है किसी एक ने तो मशहूर होना है ना। मतलब इनडायरेक्टली उस्मान शौकत तो मशहूर हो रहे हैं, लेकिन साथ में मैं भी मशहूर हो रही हूँ। तो जो ये फेम का एलिमेंट है वो थोड़ा सा परेशान करता है माशरे में लोगों को। हमारे ग्रुप में ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह अप टिल नाउ कोई बात नहीं है, इसलिए हम अच्छे से चल सक रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, दिल बड़ा रखना पड़ता है। क्योंकि कोई एक मशहूर होगा, कोई एक काम करेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। एंड वी टेक द ऑनर कि वी आर द मेन चेंबर, रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वी द ओनली चेंबर अप टिल नाउ जिसमें वुमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर मौजूद है, और वो इन प्रैक्टिस भी है। ठीक है, 2017 से। सो वहां पे हम 10 इंक्यूबेटीज होते हैं जो कि फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, और रिमेनिंग 10 या 15 डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट, वो वहां पे हमें हाइब्रिड ज्वाइन करते हैं। अब उसमें दी अवे सारा कुछ है। चूंकि वो बच्चियां आती हैं, जो वुमेन आती हैं, तो उनमें एक शर्म फियर का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, वो इतनी खुल के इंटरेक्ट नहीं करती। तो ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली से जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के हमारे साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स में लोग होते हैं, वो आपको एज एन इंडिविजुअल, एज अ वेरी रिस्पेक्टेबल फीमेल ट्रीट करते हैं। ये ब्यूटी है हमारे पाकिस्तान की। तो उसमें हमें डरना घबराना नहीं चाहिए। लेकिन हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। अगर हम इंक्यूबेट हो रहे हैं वहां पे, तो हम आगे कैसे चलेंगे। तो देयर आर वेरियस इंटरनेशनल एंड लोकल। तो हम फ्लैगशिप इवेंट्स के अंदर भी हमारी वुमेन मेंबर्स को हम ऑर्गेनाइजिंग टीम का हिस्सा बनाते हैं, ताकि वो सीखें कि मेन इवेंट्स में क्या, मेन कोरस्पॉन्डेंस में क्या प्रॉब्लम है, और उसको फिर एमिकेबली हमारे बड़े कैसे सॉल्व करते हैं। तो दीज आर कपल ऑफ एग्जाम्पल्स जो कि रावलपिंडी चेंबर कर रहा है, और अभी भी माशरे में माशाल्लाह से द वुमेन इंक्लूजन की जो प्रैक्टिस है, हमारी खवातीन मेंबर्स बढ़ती जा रही हैं इन द मेन चेंबर। वी हैव अप टिल नाउ वी हैव 400 प्लस मेंबर्स। दैट्स वेरी गुड मैम। और मैंने खुद भी जब 2025 में कॉफ़ी मॉर्निंग शो में जब मैंने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ आई वॉज सरप्राइज, देयर वाज हंड्रेड्स ऑफ
female chief executives running Yeah. their own enterprises. And of course, credit goes to Rawalpindi Chamber of Commerce. So now I request Ms. Myra to, I think, थैंक यू मैडम नौरीन साहिबा, दैट वाज वेरी इंसाइटफुल आंसर। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने हमेशा फोकस किया है जेंडर इक्वालिटी और क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो आपका इन दोनों इम्पोर्टेंट एरियाज, आपकी नज़र के अंदर इन दोनों इम्पोर्टेंट एरियाज का आपस में रेजोनेंस क्या है, एंड हाउ वुड यू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द एरियाज, और आपकी नज़र में आज के दौर में ये दोनों एरियाज के ऊपर हैंड होना क्यों ज़रूरी है? नो ऑफेंस एंड नथिंग टू द मेल मेंबर्स। खवातीन जो है ना, वो इनबिल्ट एक अल्लाह ने उनको एक क्वालिटी दी है कि हमारे अंदर एक कैपेसिटी है टू डू मल्टीटास्किंग। एक हम कुदरती तौर पे मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, दूसरा हम टाइम करते हैं बिकॉज हम खातून होके एक बिजनेस मेंबर हैं या बिजनेस की अपनी काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम एक माँ हैं, हम एक बीवी हैं, हम एक बहू हैं, हम बहुत सारी चीजें। तो इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर्ड किस्म की एक्टिविटी है ना टाइम के साथ, वो जो प्रोडक्टिविटी हम 9 से 5 में कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको पूरे एमिकेबली स्ट्रक्चर्ड तरीके से और उस तरीके से करें। इक्वालिटी क्यों जरूरी है कि या अगर हम घर से निकले हैं तो हम कुछ कमाने के लिए निकले हैं, हम कुछ अर्न करने के लिए निकले हैं, कोई चीज की रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोनों को उसका जो रिटर्न है वो इक्वल मिलना चाहिए। ये इक्वालिटी नहीं है, ये हमारा हक है। तो दिस इज हक, जो भी काम कर रहा है उसको एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करके उसको इक्वल राइट्स देने चाहिए। क्योंकि अब हमारे चालान भी उसी तरह से होते हैं। तो आई रियली वांट टू थैंक द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मरियम नवाज, शी इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब, क्योंकि उन्होंने ये चीज हमें दिखानी शुरू कर दी है ऑन द रोड्स। जब आप किसी ट्रैफिक पुलिस अगर आप देखें तो रोड पे फीमेल सार्जेंट्स भी खड़ी हुई हैं और देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, चालान हर किसी का होता है, चाहे वो खातून चला रही है या मर्द चला रहा है। तो काफी डिफरेंट इम्पैक्ट अब आ रहा है थ्रू द इनिशिएटिव्स दैट शी हैज टेकन। सो और क्लाइमेट चेंज क्यों? क्योंकि हमने हर चीज घर में देखी है ना कि हम किफायश के साथ चलते हैं। देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजिंग, या वेस्ट जितना भी होता है हम कहते हैं कम से कम हो। तो घर में भी जब हमारे पास खाना थोड़ा सा बच जाता है तो उससे हम नई एक डिश क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के लिए आपको बहुत ज्यादा चाहिए कि आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हों। तो घर का जो खाना अगर बच गया है तो खवातीन उसको एमिकेबली ऑलरेडी ट्रेंड होती हैं, तो उसमें हमें जो वेस्ट है ऑर्गेनिक या होम वेस्ट है या वेट वेस्ट कहते हैं, तो उसको हम एमिकेबली क्लाइमेट चेंज के अंदर एक बहुत बड़ा अहम किरदार वो कर सकता है। और होम गार्डनिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें काफी सारी खवातीन मैंने देखा है कि वो बहुत ज्यादा काम करी हैं थ्रू द कोविड का जो फेज था उससे अब तक। तो दे आर वेरी डायरेक्टली लिंक्ड विद ईच अदर कि क्लाइमेट चेंज के अंदर जितना भी काम हो रहा है वो सारा का सारा लिंक्ड है। आई मीन तकरीबन खवातीन से बहुत ज्यादा डायरेक्टली लिंक्ड है। इसमें आपकी बहुत अच्छी मिसाल है जो स्पेशल एडवाइजर रोमीना खुर्शीद जो हैं, वो शी इज डूइंग अ पाइवटल वर्क। आई नो हर फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स नाउ। तो वो भी जिस तरीके से एमिकेबली उस चीज़ों को देख रही है, घरों में जा रही हैं, खवातीन को ऑन बोर्ड कर रही हैं, और प्लांटेशन बहुत ज़्यादा खवातीन में पॉपुलर है। मेल सपोर्ट इज ऑलवेज देयर, बट खवातीन हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी अहम किरदार इसमें कर रही है। और इक्वालिटी इज मैंडेटरी एज फार एज जब हम वर्किंग आवर्स उतने ही लगा रहे हैं तो हमें उसका मुनाफा भी उसी हिसाब से मिलना चाहिए। सो मैम, हमने स्टार्ट में डिस्कशन के वी हैव डिस्कस सम चैलेंजेस. सो हम्म। in this background, many women often express concern that society does not fully trust their potential. We already discussed in our the start of discussion. Uh, in some cases, what they express, they are getting lower salaries as compared to male colleagues. The issue is, in your opinion, how we can address this issue? What is the reason behind this disparity? Is this only happening in Pakistan? Or is this something related to the behavior of human beings? And what is your opinion?
to the best of my knowledge and understanding and exposure that I have, it is happening everywhere, all around the globe. खवातीन को हर जगह पे, थोड़ा सा पाकिस्तान में ज्यादा हमें स्ट्रगल करना पड़ता है प्रॉब्लम हर जगह पे, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल है कंपेयर टू देम, बिकॉज वो एक डेवलप्ड नेशन है, वहां पे एसओपीज प्रोटोकॉल्स आर ऑलरेडी इन प्लेस। पाकिस्तान में हमें हर चीज में, चूंकि हम डरते हैं ना, मैंने बताया ना, हमारी खातून डरती है, हमें डराया गया है, हम एक बहुत ही डरे हुए मुआशरे का हिस्सा हैं। घर से, पहले घर से हमें कि तुम ये करोगी तो हमारी इज्जत का मसला बन जाएगा, एक रेपुटेशनल लॉस के ऊपर हमेशा घर से ये बात की गई है। और आपने भी देखा होगा, जब आप मार्केट में काम करते हैं, किसी भी लेवल पे काम करते हैं, जब आप कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं आपके लिए, ठीक है। ये सिर्फ मेल मेंबर्स नहीं करते, ये आपके खवातीन मेंबर्स ज्यादा करती हैं, ठीक है। सो परेशानी हमें होती है क्योंकि बहुत सारी खवातीन ऐसी बातें कर जाती हैं जो हमारे कानों को अगर वो पहुंच जाए तो हम बहुत डिस्करेज होते हैं, बिकॉज एक इमोशनल प्रॉब्लम होती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई आपके खिलाफ कोई बात करेगा कि इसने ये किया, या इसने एक बात ऐसी की, या इस आदमी के साथ इस तरीके से क्यों बात कर रही थी, तो इसका तो इसके साथ फलाना होगा। तो जब ये वाली बात होती है और आपके कानों तक पहुंच जाती है, तो आप परेशान होते हैं, क्योंकि हम बहैसियत इंडिविजुअल, हमारी एक बहुत अच्छी या बुरी आदत है, मैं इसको बुरी आदत के जमरे में लाती हूँ, कि अगर अस्मा ने मुझे कहा है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है कि तुम्हारे बारे में फलाना ये बोल रहा था। आ, उम्र के इस हिस्से में आके मुझे अब ये बात समझ आ गई है, अगर कोई मुझे ये बात बताना चाहता है कि तुम्हारे बारे में कोई ये कह रहा था, तो मैं उसको एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ, क्योंकि वो मेरे दोस्त ही नहीं हैं जो किसी के साथ बड़ा कंफर्टेबली मेरे बारे में बात कर सकें, कर रहे हैं। कोई भी आपका वेल विशर कभी भी आपकी किसी भी उस तरह की डिस्कशन में नहीं आएगा जो आपके खिलाफ होगी, ठीक है। तो ये बात तो बहुत अहम है, और आज का जो बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो इस तरह की बातों में बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करती हूँ। तो खवातीन का ये चैलेंज है, रहेगा, और क्योंकि नेचर ऐसा है, तो खौफ का एलिमेंट जरा ज्यादा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो द पैसेज ऑफ टाइम सॉर्ट करते हैं, तो आप अगर पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें तो आप बेहतर काम कर सकते हैं, मैं ये समझती हूँ, क्योंकि मैंने यही किया है। Thank you, ma'am, for such an insightful answer. Ma'am, what are the most common mistakes? Right, हम mistakes की बात करते हैं। जी। एंटर रियल वर्ल्ड बिजनेस लीडरशिप में फीमेल्स को मिस्टेक्स ऐसी हैं जिनको उनको अवॉइड करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। और हम्म। किस हाउ कैन वुमेन ओवरकम कल्चरल बैरियर्स टू एंटर द एंटरप्रेन्योरशिप? आपके पहले सवाल में भी इसका आंसर था, बट स्पेसिफिक कि ऐसी कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? अच्छा, सबसे अहम गलती जो हम करते हैं, हम ट्रस्ट कर लेते हैं हर किसी को। हम जब बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट गलती जो हम कर बैठते हैं, वो अपने दिल की हर बात, हर जज्बात जो इमोशंस में हमने कही होती है, वो सारी की सारी हम बयान कर देते हैं। अब हमें तो नहीं मालूम कि वो शख्स जिससे हमने ये अपनी पूरी आप बीती बयान की है, वो आया कि हमारा किसी लॉन्ग रन में जाके कोई हमें अच्छी सी डस दे सकता है। तो ये एक बहुत अहम गलती हम करते हैं, ये नहीं हमें करनी चाहिए, मैंने भी की है। चूंकि जाहिर है, मैं वही चीजें शेयर करती हूँ। अच्छा, उसमें एक तो ये बहुत खतरनाक गलती है, ये बहुत खतरनाक गलती है, ये नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम ये काम ना करें, किसी को भी ट्रस्ट ना करें, बिकॉज व्हेन यू एंटर इनटू द करियर प्रोफेशनलिज्म, कोई आपका दोस्त नहीं है, बिकॉज एवरीबडी इज competing, because you are in the same territory, so there everybody is competing. So you have to believe that we are all professionals working in an environment. We have to
बिहेव लाइक दैट। आपने हमेशा मेरे मुंह से सुना होगा कम्युनिटी एक्वेंटेंस। मैं फ्रेंड्स का लफ्ज इस्तेमाल करने से गुरेज करती हूँ अब, क्योंकि इस फ्रेंड के लफ्ज ने मुझे बहुत परेशानियां दी हैं। तो हमें बहुत ज्यादा मुहतात होके अल्फाज का चुनाव करना चाहिए। हम तो अपने बेतकल्लुफी में या एक गुड जेस्चर में हम ये कहते हैं कि ये तो मेरे दोस्त हैं। मैं हमेशा अब कम्युनिटी एक्वेंटेंस कहती हूँ, कम्युनिटी एसोसिएट कहती हूँ, कम्युनिटी कॉलीग कहती हूँ। तो ये जो अल्फाज का चुनाव है वो भी हमें बहुत तरीके से करना चाहिए। तीसरी बहुत अहम चीज जो कि औरतों को करनी चाहिए, जब एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, क्योंकि कल्चर का भी हमारा बहुत रोल है, हमें किस तरह हम ड्रेसअप हो रहे हैं, किस तरह हम तैयार हो रहे हैं, हम क्या चीजों का पहन रहे हैं। अच्छा, अब हमने अभी रिसेंट पास्ट में फोप्सा की जो फेडरल ओम्बड्समैन की बड़ी हैं फौजिया वकार साहिबा को हमने रुजू किया था हमारे चेंबर में। और उन्होंने जब अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की रिगार्डिंग द हरासमेंट केसेस एट वर्क प्लेस, उन्होंने कहा कि वो कनाडा में एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करती थी और वहां पे मेल्स और फीमेल के लिए ड्रेसिंग के कुछ नॉर्म्स थे जो कि सबने फॉलो करने थे। देखिए, अगर आप म्यूट हो गया। म्यूट से इनकी आवाज नहीं आएगी ना? आपकी आवाज नहीं आएगी जी इनको। बस मेरी शुक्र है म्यूट कर दी। ये यस, क्यों सुनो तो सही। सुनना तो है कहीं से। आइजक बीबी। मैं जाती हूँ ऑफिस चेक Asma, there's somebody else in the. Yes, madam. IT officer. Please see what is the problem. There's a problem. 7 boys, 7 class. I think we wait till the time they stop. I'm really sorry, ma'am. Please. And it's okay. It's okay. It's no problem. I understand. Okay. I think it's sorted. Yeah, ma'am. ओके, अच्छा, जो तीसरी अहम गलती जो हम करते हैं, इट्स द ड्रेसिंग। हमें ये देखना है, क्योंकि देखिए मार्केट में जब आप करियर में प्रोफेशनलिज्म में जब आप आते हैं ना, यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल। और प्रेजेंटेबल की बहुत सारी नेचर्स हैं, और आपका नेचर ऑफ जॉब बहुत डिपेंड करेगा कि आपको कैसे दिखना है, कैसे उठना है, क्योंकि अपने आप को समेट के जितना खातून चलती है उतना अच्छा होता है। तो ये गलती भी हम कर देते हैं कि हमारी जो ड्रेसिंग सेंस है, हम अच्छा लगने के चक्कर में जो है अपने लिए बहुत सारे परेशानियों को दावत दे देते हैं। तो वो हमें थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए, कॉर्पोरेट ड्रेसिंग करें तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, जो अभी तक मैंने देखा है। क्योंकि लोगों को आप मौका ही नहीं देंगे कि वो आपके बारे में बात, खैर बात तो जिसने करनी है वो करते ही रहते हैं। दीज आर द ओनली कॉमन मिस्टेक्स। और इसके अलावा जो चौथी बहुत खतरनाक मिस्टेक करते हैं कि हम, चूंकि हमारे यहाँ सॉर्ट हमने किया हुआ नहीं होता और हमने अपने घर से लोगों को कॉन्फिडेंस में उस तरीके से नहीं लिया होता कि हम कहते हैं हम उसे सॉल्व कर लेंगे, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको परेशानी आती है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके घर के जो कुछ अहम लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में जरूर लें कि मार्केट में आप ये प्रॉब्लम दो चार हो रहा है आपका। दैट्स इट। Thank you, Madam Noreen. That was very insightful answer. My next question is that कि आपने अक्सर औकात कहा है कि आपका नेटवर्क जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, being an entrepreneur. So, what role does networking, in your opinion, what role does networking and collaboration play in building a successful career? सर, नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। जितने लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप जानेंगे विथ रिस्पेक्ट टू योर बिजनेस, ये देखें, ये बहुत अहम है कि आप नेटवर्क किस तरीके से करें। मैं अपनी एक स्ट्रैटेजी के तहत चली हूँ 2019 में। माय ओनली फोकस वाज टू बी सीन इन एवरी नेटवर्किंग, बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट जहां पे मुझे पहले जाना जरूरी था। और जो दूसरा अहम, जब मैंने अपने आप को हर किसी, क्योंकि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला जो टैगलाइन है ना वो बहुत पाइवटल है, तो आपको नजर आना होता है।
जब आप इनिशियल स्टार्ट करते हैं तो आपको हर जगह नजर आना चाहिए जो बिजनेस से रिलेटेड एनवायरनमेंट में एक्टिविटीज हो रही हैं। सोशल गैदरिंग्स मैं अवॉइड करती हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। लेकिन कुछ सोशल गैदरिंग ऐसी होती है, जो ऐसी शादी है जिसमें कोई बड़ा आना है, तो वहाँ रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सा इवालुएट करना होता है, क्योंकि जब आप नेटवर्क के अंदर होते हैं ना, जैसे अगर मैं अपना थोड़ा सा अपने बिजनेस के हवाले से अगर कोई बात करूं, तो एक HVAC, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेंट का एक सेगमेंट है इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो उसके अंदर मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो ब्रांड है, वो बहुत हाई एंड है। ठीक है, अगर वो हाई एंड ब्रांड मेरा क्लाइंट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं एक नेटवर्क के अंदर हूं, मैं उनको वो दूसरा ब्रांड दे सकती हूँ जो कि थोड़ा सा सस्ता हो, और उसमें वी कैन कोलैबोरेट। टर्म्स एंड कंडीशन के हम ब्रांड यूज करेंगे, एग्जीक्यूशन की टीम मेरी होगी, तमाम मामलात, क्लाइंट इज माइन। तो उसके अंदर हम एक बेटर सोल्यूशन दे सकते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होती अगर आपको बेहतर तरीके से आपका नेटवर्क क्रिएट हुआ है। ठीक है, एंड एंड ऑफ द डे हर चीज, नेटवर्क बहुत अहम किरदार प्ले करता है। कोई परेशानी है, कोई आउटरीच प्रोग्राम करना है, जैसे एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम माय फ्रेंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड वुमेन इन टेक का जो प्रोग्राम है वो उसको लीड कर रही है। शी वांटेड एक्सेस टू द चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑल पाकिस्तान। चूंकि मैं बीइंग एन एग्जेक्टिव एंड अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ द रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारी हर साल ऑल पाकिस्तान प्रेसिडेंट चेंबर्स की समिट होती है बिफोर द बजट, और उसमें सारे पॉइंट्स लिखे जाते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि मैं उस जो उनका जो प्रोग्राम है वो मैंने सारे वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स के अंदर पहुंचा दिया है। तो वो नेटवर्क मैं बना सकी कैसे, कि मैं पूरे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स, एग्जीक्यूटिव्स में रसाई है मेरी, बिकॉज आई टुक आउट टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट, उसकी ऑर्गेनाइजिंग टीम में, और पूरा प्रोसेस, और उन सबको एक हॉस्पिटैलिटी का जो एलिमेंट है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। ठीक है, आपने अगले को अगर बुलाया है एज नेटवर्किंग के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पीपल्स डीलिंग कैसी है, आप लोगों को फील कैसा कराते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं मेरा हमेशा मुस्कुराता चेहरा पाया है, अगर आप फ्राउन फेस होंगे तो आपके पास नेटवर्क भी करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा। हमेशा नेटवर्किंग इवेंट्स के अंदर ना आपको बांटना पड़ता है, गुडविल जेस्चर्स देने पड़ते हैं। अगर आप वैल्यूएबल लगेंगे तो अगला आपको काम भी देगा, आपके साथ अटैच भी होगा, क्योंकि बात होनी चाहिए। नेटवर्क के अंदर ये बहुत अहम है, और कोलैबोरेशंस इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। आप कोई भी इंटरनेशनल केस स्टडी उठा लें, एवरीबडी हैज कोलैबोरेटेड। फार्मास्यूटिकल सेक्टर आपके पास एक बहुत बड़ी अहम मिसाल है कि उसमें बहुत पाइवटल रोल कोलैबोरेशन का है। Madam Noreen Ghaffar, I must say that is really a useful solution. And I would like to add here, United Nations के जो goal हैं, Sustainable Development Goals, आप उसमें देखें SDG 16, SDG 16 and 17, in itself they are endorsing collaboration and networking. आप आज international world को देखें, they are seeking for the international collaboration. But why? Just because of these SDGs. SDG 16 है peace, justice and strong institution, and SDG 17 that is a partnership for the goals. Both उन दोनों की डिटेल में अगर आप जाएं, तो जब तक हमारी नेटवर्किंग नहीं है, जब तक हमारी कोलैबोरेशन नहीं है, ना ही इंडिविजुअल्स, ना इंस्टीट्यूशंस, ना इन कंट्रीज वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं वर्ल्ड इज नाउ अ ग्लोबल विलेज। सो मैं Yes. उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे लूंगी। I have personally observed that Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry has a very supportive and family-like environment. And of course, credit goes to the leadership. Currently, Usman Shokat Saab काम कर रहे हैं. So, in this regard, how can students and young graduates connect with the Chamber of Commerce, and what opportunities or benefits are available for them to gain exposure, develop their skills, and enter the professional world? Of course, personally, I have already witnessed it, but I want to know from you as well, because you are representing as a chief executive committee member. मैम, इसके लिए अवर चेम्बर्स डोर्स आर ऑलवेज ओपन। जब भी कोई इंस्टीट्यूशन हमें अप्रोच करता है, मतलब स्पेशली दी एकेडेमिया से,
तो हम उनके विजिट्स भी, इंडस्ट्रियल विजिट्स भी अरेंज करा सकते हैं ताकि बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा हमारी डिफरेंट कमेटीज हैं, जिस तरह से इकोनॉमी में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, उसी तरीके से हमारी चेंबर के अंदर भी डिफरेंट कमेटीज हैं। कंस्ट्रक्शन की अलग है, उसके अंदर सब कमेटीज हैं, पेंट की अलग है, एचवीएसी की अलग है, फार्मा की अलग है, होमियो की अलग है, मतलब देर आर ह्यूमंगस। तो उसमें एज एन ऑब्जर्वर आके आपके बच्चे जब भी आना चाहें, इट्स एन ओपन डोर पॉलिसी। मतलब जाहिर है कुछ प्रोटोकॉल्स हर इदारे के होते हैं, तो वो फॉलो करके, मतलब फैसिलिटेशन डिपार्टमेंट हमारा मौजूद है, या फिर हमारे पास एग्जेक्टिव ऑन ड्यूटी हर रोज मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल होता है फ्रॉम 10 to 6। तो वहां पे आके आप बैठ के डिस्कस कर सकते हैं और फिर रेलेवेंट, क्या इसको कहते हैं, कमेटी के अंदर एज एन ऑब्जर्वर बैठ सकते हैं, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन से बहुत सीखते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और बिजनेस आइडिया आपने डेवलप कर दिया है, कोई ऐसी चीज है, तो हम राइट पार्टनर्स के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं आपको, प्रोवाइडेड यू हैव डन योर होमवर्क राइट। क्योंकि आप ये बोलेंगे कि मैं करूं क्या, तो ये हम आपको नहीं बता सकते। आई मीन क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। आपको हम डायरेक्शन जरूर दे सकते हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, जितना जैसे कॉफी मॉर्निंग में हमने आपको बुलाया, जैसे परसों हमने एक एक्टिविटी की, हमने बायलैटरल ट्रेड के ऊपर डिस्कशन की, रवांडा की हाई कमिश्नर शी वाज देयर, एक्सीलेंसी ने, मतलब यू विल नॉट बिलीव कि वहां पे जो बैठी हुई थी, वहां की कोई 8 से 10 खवातीन, दे वांट टू इन्वेस्ट इन रवांडा, विच इज अ वेरी वेरी, मतलब things coming out from male's mouth for investment in other countries is always witnessed, always heard, but these words coming out from a woman's mouth has very less been heard, but it has been seen and they are already working. I'm also working with Rwanda. तो डिपेंड करता है कि आप क्या हमसे रसाई चाहते हैं। वी आर ऑल ओपन टू हेल्प। आप कहते हैं कोई कस्टमाइज ट्रेनिंग सेशन कर दें, तो वो भी, दैट इज ऑल्सो वेरी मच डूएबल, नो प्रॉब्लम्स। मैम यू आर वेरी मच राइट इन योर ओपिनियन, और मैं भी इसको यहाँ पे एंडोर्स करूंगी। टीचर्स हों, मेंटोर्स हों, इंस्टीट्यूशंस हों, कंट्रीज हों, वो डायरेक्शन दे सकते हैं, करना इंडिविजुअल नहीं होता है। इफ यू वांट टू डू समथिंग देयर इज नथिंग, नो हर्डल, बट इफ यू don't want to do anything, आप सब कुछ भी दे दें, you are not willing to do it. So ma'am, my next question is, you have experience in supporting business and you also run your own business. In your opinion, what are the current needs and opportunities for the women in Pakistan? Which fields, for example, like technology, online business, engineering, or product that fill the market gap? What is your opinion? Which products are more suitable for the current scenario of the Pakistan? अच्छा, फॉर खवातीन दी अपॉर्चुनिटीज आर वेरी ह्यूमंगस, बहुत ज़्यादा मौजूद हैं इन द करंट एरा। चूंकि हमारा, और प्लस हमने जो कल्चर बैरियर की बात की, हमारे घर में हमारे सारे जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, टेक्नोलॉजी इज वन सेगमेंट, आईटी इज वन सेगमेंट, जो कि हम घर बैठे कर सकते हैं और उसकी बहुत रीच है। लेकिन अब वो टेक के अंदर आपने कोलैब भी करना है ना, क्योंकि हर किसी की हर चीज के अंदर एक्सपर्टीज नहीं है। तो अब घर बैठे समझ सकते हैं, तो आईटी इज अ वेरी 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 ह्यूमंगस फील्ड जिसमें काम किया जा सकता है। और आजकल आपको पता है एआई की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो रेलेवेंट उस इदारे से ट्रेनिंग लें जिसमें आपको बेहतर तरीके से आगे फायदा हो। तो ये प्लीज उसकी ड्यू डिलिजेंस जरूर करें कि कौन आपको क्या चीज करा रहा है। दूसरा, दूसरी इंडस्ट्री जिसमें बहुत ज्यादा है, आईटी तो है ही है, इसके अलावा ई कॉमर्स के हवाले से भी बहुत ज्यादा एक्टिविटी की जा सकती है, फिनटेक्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स कुछ डेवलप किए जा सकते हैं बेइंतहा तरीके से, क्योंकि हमारी एक इम्पोर्ट इकोनॉमी है। तो अगर कोई चीज़ हम ऐसी हैं जो हम पाकिस्तान में लोकली बना सकते हैं, ऑर्गेनिक, आई मीन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, अगर कोई चीज़ें आप फार्मिंग करें, आप पोटैटो पील से कुछ वो बना लें, व्हाट यू कॉल समथिंग बायोडिग्रेडेबल। इसके अलावा क्लाइमेट एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोड्यूस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, और वो भी खवातीन काफ़ी ज़्यादा कर रही है, और गवर्नमेंट का भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रुझान है। सो देर इज लॉट ऑफ रिसर्च डन, प्लस स्ट्रक्चर, जो आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो स्ट्रक्चर के लिए
कुछ अर्थक्वेक रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, कुछ ब्रिक्स हैं जो आप बना सकते हैं थ्रू वेस्ट। तो काफी सारी, बहुत इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा सेगमेंट्स हैं जहाँ पे औरतें बहुत ज्यादा काम कर सकती हैं। इट्स जस्ट वन शुड नो व्हाट दे वांट टू डू। Thank you so much, ma'am, for such an insightful question. Now I back to Myra, please. Thank you so much, Madam Noreen साहिबा. My next question is that आपके नज़दीक जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यंग वुमेन कैसे लीडरशिप रोल हासिल कर सकती हैं, चूँकि pathways are not clear and they are not clear about how to start the leadership role, or they are not clear about how to prepare themselves for getting that leadership role. So how would you see that? अच्छा, लीडरशिप इज नेवर गिवन, इट इज यू आर हाईलाइटेड। सो ये तो लीडरशिप रोल पे आने के लिए ये तो बस अल्लाह की तरफ से सर्कमस्टांसेस बनते हैं एंड देन यू ऑल अपलिफ्ट, क्योंकि ये तो आहिस्ता आहिस्ता ही प्रोसेस पता चलता है। और एज फार एज यूनिवर्सिटीज आर कंसर्न, primary focus of any girl in the university should make herself valuable through studying different subjects, and उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए आप लोग के पास भी डिफरेंट सोसाइटीज होती हैं, एंटरप्रेन्योरल सोसाइटी होती है, बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं। जब आप सोसाइटीज के अंदर मेंबर्स इकट्ठे करते हैं तो उसके अंदर आपकी लीडरशिप, चूंकि आपने ये इनिशिएटिव ले लिया है कि आप सोसाइटी चलाएंगे, तो यू आर अ लीडर। फिर वो सोसाइटी को कैसे लेके चलना है, तो आपने पीपल डीलिंग करनी है, आपने उन्हें कन्विंस करना है। सो ये ज्यादा निगोशिएट करते हैं कि मुझे ये रोल दे दो, मुझे ये नहीं, फिर उसको समझाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, नेगोशिएशन, गिविंग रिस्पेक्ट, एम्पावरिंग, ये तमाम चीजें विद इन दी यूनिवर्सिटी, जो आप डिफरेंट FIPs के लिए भी जो ग्रुप बनाते हैं तो उसमें भी ये चीज आप डेवलप करते हैं। तो ये सब कुछ यूनिवर्सिटी के ही प्लेटफॉर्म से आपके अंदर ये क्वालिटी पॉलिश हो रही होती है, और यू नर्चर होके आप सोसाइटी में जब मतलब इकोनॉमी में कदम रखते हैं तो फिर आप काम कर सकते हैं। एंड वहीं पे आएगा स्वॉट करना है इम्पोर्टेंट। Thank you so much, ma'am Noreen. Ma'am, I have one more question. Already you partially have discussed in your earlier discussion as well, but I want some detail answer. For example, if someone has an idea for the start, does the Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry provide guidance or support to help them turn their startup into a business? And do you offer any programs, mentorship, and or plans to help them start and grow their ventures? मेंटोरशिप हम देते हैं, गाइडेंस हम देते हैं, वुमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर हमारे पास ऑलरेडी इन प्लेस है। तो सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ आपको ऑर्गेनाइज करने में, दैट इज देयर। बट फिर वही बात आ जाती है कि इस प्लेटफॉर्म इज देयर, बट आपको पता होना चाहिए कि आपने उस प्लेटफॉर्म से कैसे अपने लिए अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है। अगर आप ये कहेंगे कि मैं आपको फंड करा दूं, मैं आपको मेंटोर से कनेक्ट कर सकती हूँ, मैं आपको पार्टनर्स के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ कि ये आपके प्रोस्पेक्टिव लोग हैं जो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, मैं उनको फोर्स नहीं कर सकती, वो कन्विंस आपने करना है। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं, और इसको कैसे एमिकेबली इस्तेमाल करना है थ्रू कोलैबोरेशन, थ्रू नेटवर्किंग, ये आप पे है। सो इट इज देयर, एंड गाइडेंस हम देते रहते हैं। तो मतलब डिफरेंट कमिटीज हैं, वी आर पार्ट ऑफ आई थिंक मोर देन 40 यूनिवर्सिटीज इन द ट्विन सिटीज। या Thank you so much. Myra, have you any question? I do have. Thank you so much, Madam Noreen, for your insightful answering so far. My next question is that do you have any experience conducting interviews with Gen Zs? Plus, चूंकि आज का दौर ऐसा है कि Gen Zs को less committed या less hard working rather than previous generation से समझा जाता है, तो in your opinion, how far is this perception true? और उसके अलावा what strengths or qualities do you see in Gen Z in today's professionalism and business environment? अच्छा, जेंजीज मेरे साथ काम करते हैं, वे भी मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जो भी हों, सब मेरे साथ काम करते हैं। और चूंकि जेंजीज, हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माशरे को समझना, जेन एक्स, जेन वाई, मिलेनियल्स को, कि हम मिलेनियल्स हो गए, जेन एक्स हो गए, हमने कभी ये किसी को नहीं बताना समझा
कि हम ये काम करें तो हमें फायदा क्या होगा, ठीक है। तो अब का जो दौर आ गया है, बिकॉज वी आर इन अ ग्लोबल और वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स हमारे पास इतने हो गए कि हमें ये पता है कि हम कितने वैल्यूएबल हैं। तो अब हमें किसी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब इन अ वेरी क्लियर वर्ड्स में। तो जेंजीज इंस्पायर करते हैं और थ्रू इंस्पिरेशन आइडियलाइज करते हैं कि अगर कोई बंदा मुझे कह रहा है या कोई इदारा मुझे ये कह रहा है कि आप सर्वे करें, गर्मी है बाहर, 50 टेम्परेचर है, सर्वे करके मेरे पास लेके आए, तो क्या जो आपका बॉस है या आपका जो सरबराह है उस कंपनी का, क्या उसने ये काम किया है? मार्केट ये शोर मचा के बता रही है। तो अगर वो बता रही है तो वो बच्चे आपको फॉलो करते हैं, ठीक है, उसमें कोई सेकंड थॉट्स नहीं है। क्योंकि मेरे साथ जेंजीज का, क्योंकि मैं उन्हें बताती हूँ कि व्हाट इज इन इट फॉर देम एंड व्हाट बेनिफिट दे विल अचीव। सो अच्छे हैं, गाइडेंस की सिर्फ थोड़ी सी प्रोफेशनल गाइडेंस की कमी है, और वो जब हम उन्हें देते हैं तो दे आउट परफॉर्म, क्योंकि दे आर स्मार्ट हार्ट के साथ साथ दे आर स्मार्ट वर्कर्स एज वेल। तो देर इज नो सेकंड थॉट्स के भाई उनमें ये मसला है, क्योंकि मेरा मेरा उनके साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और वे फॉरवर्ड भी मुझे लगता है कि दे वुड डू वंडर्स। लेकिन हम मिलेनियल्स, जेन एक्स, जेन वाई की एक मॉरल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें हम गाइड करते रहें। इसी वजह से हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जाके उनसे बात करते हैं, ताकि उन्हें पता हो कि उनको किस चैलेंजेस के लिए मार्केट में तैयार होना होगा। दैट्स इट। Thank you, and Madam Noreen Ghaffar. Uh, Ma'am, as we are going towards concluding our session, the second last question is from my side. What advice would you give to female students who aspire to become entrepreneurs or business leaders? And what message would you like to give to the female participants attending this workshop, especially? सबसे अहम चीज के अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए, कि आप अपने आप से क्या चाहते हैं वो जरूर बना ले। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ कि आर यू केपेबल ऑफ रनिंग टेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत अहम है। तो ये जब स्ट्रेटेजिक गोल या एक रोड मैप अपनी जिंदगी का, करियर का बनाया होगा, तो आप बेहतर कर सकेंगे। तो प्लीज बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, डू द स्वॉट, एंड अपनी जो घर की कल्चरल जो कल्चरल नॉर्म्स हैं अपने घर के, उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी फील्ड चूज करें। और अगर आपके कल्चर नॉर्म्स के हिसाब से आपकी फील्ड नहीं है तो भी उसका सोल्यूशन है। उसका सोल्यूशन ये है कि आपके जो जो आपसे सबसे ज्यादा घर में मोहब्बत करते हैं लोग, उनको आप कन्विंस कर सकते हैं कि जो फील्ड आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसके अंदर कोई परेशानी, कोई मुज़ाहिका नहीं है। तो आपको कम्युनिकेट करना है इन अ ट्रांसपेरेंट वे, और परमिशन मिल जाती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, परमिशन मिल जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं। बस आपको थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ करना होगा। जस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर एंड से नो टू एक्सोजेनस फैक्टर्स, जिसमें लोग क्या कहेंगे को आप बिल्कुल क्रॉस कर लें। सुने ही नहीं गलत बात के परेशानी हो तो बुरी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। नेवर एक्सप्लेन व्हेन यू आर रॉन्ग। अगर आप गलत कुछ किया ही नहीं है तो आप एक्सप्लेनेशन क्या किसी को दे के आप कन्विंस कर सकेंगे? तो डोंट वेस्ट योर एनर्जीज एंड रिसोर्सेज एंड कन्विंसिंग पीपल हु हैव ऑलरेडी मेड अप एन ओपिनियन अबाउट योरसेल्फ। तो ये खवातीन के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जस्ट स्टे फोकस, बिलीव इन वन फोर्स दैट इज द ऑलमाइटी, just sync with the Almighty. That's it. Have तवक्कल, डायरेक्शन सीधी रखें, सारे एसओपीज को फॉलो करें जो कि बिजनेस की मेन नीड है, पढ़िए, और सबसे अहम पाकिस्तान से दिल से मोहब्बत कीजिए। और चूंकि पाकिस्तान इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो कुछ भी उठा लें तो देयर इज अ ह्यूज बिजनेस कमा सकते हैं आप। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू say to the women who are listening। और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन प्रैक्टिस। नौरीन, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है और आप कह लें आपने हम सब के दिलों की बात की है। Oh my God. तो आई थिंक नाउ last Myra has last question from our side, and then after that we will open the question and answer session from the participants. Yeah.
Thank you. Thank you, Madam Noreen Saiba, for giving us very impactful answers so far. चूंकि हमारा प्रोग्राम ऐसा है, we are working under the female ambassador program initiated by Chief Minister Punjab and working through Women Development Department, जिसके अंदर जो है वो हमने women empowerment को या leadership skills को या advocacy skills को जो है वो promote करना है. तो in your opinion, how can institution like universities further promote women empowerment? ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन विद द बिजनेस कम्युनिटी. तो आप यूनिवर्सिटीज के अंदर तो जाहिर है गेस्ट स्पीकर सेशंस करते ही करते हैं, जैसे ये वेबिनार भी हमने किया है. आप फर्दर इनको लेके आए डिफरेंट, जैसे रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर लेके आए, आप उनको फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेके जाएं, उनको आप डिफरेंट हमारी जो एसोसिएशंस हैं, जितना एक्सपोजर देंगे उतनी लीडरशिप स्किल्स हम डेवलप, क्योंकि हम जितने ज्यादा लोगों से मिलते हैं उतने ज्यादा नजरिए हमें पता चलते हैं, और उसी नजरिए को हमें एमिकेबली कैसे सॉल्व करना है हम वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं. क्योंकि जितने ज्यादा लोग, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से अलग है, तो जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे ना, तो आपका अपना एक्सपीरियंस का जो वो है सर्कल, वो बढ़ता जाएगा एक्सपोजर के हिसाब से. सो इट्स ऑल, द मोर एक्सपोजर द बेटर इट इज. और खवातीन लीडरशिप रोल के लिए एक अहम चीज दिल बड़ा रखना है. और चूंकि आप कोई भी ना, एक मेरा कम्युनिटी का एक पेंडर से कहते हैं कि कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं, जब स्टार्टिंग में, तो दो चीजें हमेशा हर चीज से हासिल होती हैं. एक होती है मशहूरी, दूसरा होता है पैसा. तो इनिशियल स्टेजेस में आपको मशहूरी होती है, क्योंकि जब आप मशहूर हो जाते हैं तो उसके बाद फिर पैसा एज अ फॉलो अप. तो प्लीज फोकस कि किसी के लिए आसानी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप मशहूर होंगे. दिलों पे राज करना सीखें तो दिमाग में आप ऑटोमेटिकली बस जाते हैं. Wow, ma'am, we all are agree with your solutions you have provided in all our today's discussion. I think, Myra, we should open up the question and answer session. So now the house is open for the question and answer, and the participants, if they have any, they can directly ask with our guest speaker, Madam Noreen Ghaffar, and she is working as a executive committee member at Rawalpindi Chamber of Commerce. हाँ जी, कोई है देखें. 74 मैसेजेस हैं यहाँ पे. शरियार, आप उस पे से. डॉक्टर अक्सा सिद्दीक का हैंड रेज है मैडम. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर अक्सा. थैंक यू वेरी मच मैम. आपसे बहुत अच्छी चीज़ें सुनने को मिली, कहीं कहीं अपनी लाइफ की रिफ्लेक्शंस भी नजर आई. आई एम प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर. ओके. और आई 100% एग्री विद ऑल दोज गाइडलाइंस यू हैव प्रोवाइडेड टू आवर women स्पेशली. कुछ सबमिशंस थी जो शेयर करना चाह रही थी. Because I'm working as a head of the management and business sector of my university. Right. So women empowerment or leadership or all these are my domains of study as well, research. So I strongly endorse आपने जो फरमाया networking की importance को. तो उसके लिए कुछ submissions थी कि हमारे जितने भी chamber of commerces हैं women के in all cities and provinces, अगर ये कुछ इस किस्म की लिंकेजेस डेवलप करे विद एकेडेमिया, स्पेशली वी द एजुकेटर्स, तो हमें कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस, कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाएं जिसमें आप लोगों का जो प्रैक्टिकल वर्क है, as you said that engineers are working with you, professors are working with you, the generation Z is working you, of course they are you can say the real of the society, of the economy. तो मेरी एक छोटी सी सबमिशन ये है कि अगर हम जैसे एकेडेमियंस को अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाएं दैट आर बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, मतलब उनका वो मॉड्यूल चाहे 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, वीक टाइम का हो, लेकिन वो जैसे अभी आपने फरमाया, आपने बहुत सारी एग्जांपल्स दी leadership से related, entrepreneurship से related, what should we do, what not, what people are doing, what challenges are there in the society, in the economy,
सोशल से। तो इस किस्म की अगर हमें वो दी जाएंगी तो वी कैन कम बैक टू आवर यूनिवर्सिटीज, आवर डिपार्टमेंट्स, वी कैन जनरेट दोज मॉड्यूल्स एंड वी कैन रियली एजुकेट आवर फीमेल्स स्पेशली एंड ऑल। मैं वुमेन एम्पावरमेंट में 50% रोल मेल का भी समझती हूँ, बिकॉज यू नो एज यू सेड दैट नो ऑफेंस विद मेल्स और डिस्क्रिमिनेशन, हम खुद डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे तो आगे हम ये चीज़ जो है वो फॉरवर्ड करेंगे। समझ तो गई मैम। मैं समझती हूँ कि फीमेल्स की ट्रेनिंग जितनी ज़रूरी है फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप, फॉर द लीडरशिप, उतनी ही हमारे मेल्स, मतलब मैं जब पढ़ाती हूँ 50-50 की रेशियो क्लास में या 40-60 की रेशियो क्लास में, तो मैं कहती हूँ कि पहले मुझे अपने मेल्स को, मुझे अपने बेटे को एजुकेट करना है कि तुमने औरत की रिस्पेक्ट करनी है, तो Raksa, तब आप जाकर हाँ Dr. जी Akhtar, actually, we have a very shortage of time, so your point is taken. We are treating. जी जी मैम। तो मेरा ये सिर्फ एक सजेशन है मैम के इस प्लेटफॉर्म से की अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए कि अगर हम कुछ इस किस्म के कोर्सेज, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विद द लिंकेजेस एंड एक्रीडेशन ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस, तो ठीक है। उससे ये होगा कि हम नेक्स्ट आगे चल के ऐसे मॉड्यूल्स डेवलप कर सकेंगे विच विल बी बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। हम तो अमेरिका की बातें करते हैं, एसडीजीज की बातें करते हैं, दीज एसडीजीज नीड्स to be translated and integrated into the local, हमारे जो local requirements हैं वो बहुत different हैं। हम SDGs की हाँ बात करते हैं, ठीक है, I agree with that, लेकिन वो हाँ SDGs हमारी locality के साथ कितनी जो है हाँ वो aligned है, that alignment is required. Thank you very much. Very very impressive or very nice and very informative session it was. I really appreciate the effort of University of War. Thank थैंक you यू। so much, Dr. Aksa. Thank you so much. We are truly honored. Pleasure. Your point is taken, and of course, that's why we have invited today Madam Noreen Ghaffar. And of course, in future, we will work on these lines as well. We have this is the start of the story, but we are Inshallah. ending our session today. We will still working on it. Thank you so much. थैंक यू Inshallah. थैंक यू। Thank you, ma'am. Ji Mara, there is another question, please. Yes, Mukaddis is saying, can a student present a business idea with RCC without any university affiliation, Madam Noreen Sahiba? हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, जैसे बिजनेस आइडिया कंपटीशन जब होता है तो जरूर उस वक्त प्रेजेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। Internship with RCC? जी अब अप्लाई करते हैं तो जरूर जब टाइम होता है, आई मीन जून जुलाई के अंदर दिस इज अ ह्यूमंगस लिस्ट, तो उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं हमारे सेक्रेटरी जनरल एंड हिज टीम, तो अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं नाम तो आ ही जाएगा। हाँ जी। Okay, we have another question. Arisha Mazhar कह रही हैं that after today, what is very first step we should take if we have a business idea? Madam Noreen Sahiba. स्वॉट एनालिसिस किया हुआ है उन्होंने, ये नहीं पता। चले, अगर आप वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि अपना स्वॉट एनालिसिस कर लें, अपना बिजनेस आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है अगर उसकी एग्जीक्यूशन आप नहीं कर सकते, तो एग्जीक्यूटेबल प्लान के साथ अगर आप हमारे पास आएंगे तो आपको फायदा होगा, अदरवाइज हम अपना यही जो मैं आपको अभी बता रही हूँ वही हम आपको बता देंगे और काम हो जाएगा। सो लेट्स बी रियलिस्टिक एंड एग्जीक्यूटेबल आइडिया, क्योंकि जो भी लोग सीट पे बैठे होते हैं जाहिर सी बात है हमारे पास लॉट ऑफ चीजें आ रही होती हैं, एवरीबडी इज फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड, तो हमें अपनी सक्सेस स्टोरी भी दिखानी होती है। सो वी वुड लाइक टू वर्क विद दोज पीपल प्राइमरीली। हम दूसरे स्टेज के ऊपर जरूर आपको कंसिडर करते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेज के ऊपर वो चीज जिसके ऊपर हम फटाफट काम कर सके, आई मीन कराची की लैंग्वेज है, सॉरी फटाफट बोल दिया मैंने, मतलब हम फौरन काम कर सकें उसके ऊपर। तो फाइका अनवर ने हाथ रेस किया हुआ है। फाइका जी, फाइका अनवर कह रही हैं कि हेलो, आई एम फ्रॉम कराची, आई जस्ट नीड के हम अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो स्टार्टअप कैसे करें, लाइक ए कॉमर्स है स्टार्ट कर रही, तो हाउ वी विल डू एज आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। यार स्टार्ट कैसे करना है तो वो तो हम नहीं बता सकते हैं ना, ये तो ट्रेनिंग सेशन आज का हुआ है, उससे आपको आइडिया हो ही गया होगा अगर आपने पूरा सुना है तो। उस पे स्टार्टिंग में पूरा तरीका बताया है कि कैसे आपने आगे बढ़ना है, ये आपको पूरा रिपीट टेलीकास्ट में सुनना पड़ेगा, स्टार्टिंग का पूरा आधे घंटे का सेशन।
And ma'am, for the information of the participants, after the session, we will broadcast our recording of the Zoom meeting to all our social media accounts, including the YouTube channel of the University of WA. So, as we have a shortage of time, Madam Noreen, we will take the last question from our participant. Is there any question, Shariar? अस्सलाम वालेकुम मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल हमारी बहुत सारी बहनें हैं जिनके पास बिजनेस आइडियाज़ होते हैं बट कुछ फैमिलीज़ की लिमिटेशंस होती हैं कुछ प्रेशर्स होते हैं जिनको लेके वो उस आइडिया को ना पब्लिकली ना इम्प्लीमेंट कर सकती हैं ना उसे पब्लिक कर सकती हैं तो वो इस सिचुएशन को कैसे टैकल करें। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये कल्चरल बैरियर इज ऑलवेज देयर। तो कोलैबोरेशन आ जाती है ना कोई ऐसा, उसके लिए आपको थोड़ी सी बलि देनी पड़ेगी कि आप जो आइडिया आपने बनाया है, खानदान में कोई तो ऐसी शख्सियत या दोस्ती के सर्कल में कोई तो ऐसा शख्स होगा जो आपकी इस ख्वाब की ताबीर कर सकता होगा। तो आपको उनके शैडो में काम करना होगा। मतलब दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड कि शैडो पे रह के काम करना होगा और आहिस्ता आहिस्ता अपने घर के लोगों को कन्विंस करें कि देयर इज नो हार्म, ये मैं काम कर रही थी। किसी ना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अगर आप काम करेंगे तो दैट वुड नॉट बी जस्टिस टू द फैमिली। कॉन्फिडेंस में लेना इज पाइवटल, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। रिबेलियस होने से कुछ हासिल नहीं होता, हमेशा निगोशिएशन इन अ पॉजिटिव वे से फायदा होता है। और तवक्कल रखें, परमिशन दे देते हैं, थोड़ा स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है, परमिशन मिल जाती है। इट्स कंज्यूमर बिहेवियर, थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा अपने घर के कुछ लोगों को। Thank you so much, Madam Noreen Ghaffar. Now we are going to conclude our session. So we have truly learned from your invaluable expertise, and of course, these are all the experiences of a very senior person from the Rawalpindi Chamber of Commerce. So as we come to end of today's insightful session, I would like to extend my heartfelt gratitude to our distinguished guest speaker, Madam Noreen Ghaffar, respected guests, and active participants for their valuable time, contributions, and engagements. Today's discussion, I am sure, has truly highlighted the importance of empowering women as key drivers of sustainable development goals and economic growth. I would like to once again acknowledge the support of the Chief Minister of the Punjab and the Government of the Punjab Women Development Department for making this initiative possible.